some details. So this will be a very popular program. School books to be e-books. All the NCERT books are being converted to e-books. And not only e-books, there will be interactive learning methods which will happen. SMS-based weather things, and national portal for lost and found children. There is actually a group at the government of India level, which is a monitoring committee on digital India. This committee is being chaired by the Honorable Prime Minister and the other Honorable Ministers, Finance Minister, our Communication and IT Minister, RD, HRD, Health, they are members, and maybe we'll increase these membership. The Prime Minister asked us to increase this membership to include some other critical ministries. And similar dispensation can be done at the state level. You already have on the NEGP, you already have an apex committee under the Chief Minister, Honorable Chief Minister. Similarly, this Digital India program could also be monitored by the states under the committee chaired by the Honorable Chief Minister. You can have some working level committee under the Chief Secretary. So all those structures can be replicated at the state level so as to have a better monitoring things. And these are broadly what are the challenges and other kinds of things. I'll not go for the sake of time. I think I've already taken more than my allotted quota of time. But I'll only say that this program, if implemented in all its component and its entirety, certainly will transform this country and will take us much, much higher in the digital sort of hierarchy, digital world. We will be figuring much higher because we already have a huge talent pool. This is one program which does not require huge investment in terms of infrastructure. What it requires is essentially changing the processes, changing the systems, which is easily done. And therefore, if we are all decide together that we want to see an India which is digitally empowered, which is a knowledge society, I think we can all do it. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Many of us had heard about Digital India, but I'm sure equally that for many of us, this is the first exposure to the vast range and the mammoth task ahead of us in Digital India. It's my privilege now to invite the Honorable Minister for Communication and IT and Law and Justice, Shri Ravi Shankar Prasad, for his keynote address. बिहार के आईटी मिनिस्टर श्री शाहिद अली खान, गोवा के श्री फ्रांसिस डिसूजा, गुजरात के श्री भूपेंद्र सिंह चुदासमा जी, मेघालय के श्री एल हक, उड़ीसा के श्री प्रणव प्रकाश दास, उत्तर प्रदेश के मनोज पांडे, आंध्र प्रदेश के पी आर रेड्डी, जे के फिरोज़ खान, तेलंगाना के टी रामाराव, मध्य प्रदेश के भूपेंद्र सिंह जी, आईटी विभाग के सचिव राम सेवक शर्मा जी, टेली कम्युनिकेशन के सचिव राकेश जी, मंच पर बैठे मेरे पदाधिकारीगण और पूरे देश से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हम कैसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये मैं कुछ उदाहरणों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। ये रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के हैं, उनकी आपकी अदालत का कार्यक्रम था जिसमें मैं गया था। तो लंच पे हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात बताई कि जब भी रात में वो अपने स्टूडियो से अपने घर लौटते थे दिल्ली में, तो उनका नौकर एक मोटरसाइकिल पर एक घर के सामने बैठकर अपने मोबाइल से खेलता रहता था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वाई ही सिट्स हियर ऑलवेज। तो उन्होंने कहा बहुत सीधी सी बात है, जब घर बंद रहता है तो जहाँ वो बैठता है उस घर से वाईफाई सबसे बढ़िया मिलता है और वो अपने स्मार्टफोन से ब्राज़ील का फुटबॉल देखता रहता है। दिस इज इंडिया। द सेकेंड इशू वॉज ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, वो शिया मुस्लिम काशी के बगैर के इलाकों के, वो मुझसे मिलने आए जब मैं मंत्री बना। मैंने उनका सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, उन्होंने मुझे बधाई दी। वो वीवर कम्युनिटी के थे, मेरी पत्नी के लिए साड़ी भी लाए थे और उसमें वो शिया मुस्लिम थे काफ़ी। तो जो इराक में हो रहा है उससे परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि सर आप कुछ करिए, हम लोग बहुत दुखित हैं। और उसमें एक शख्स दुबला पतला, उसने अपना स्मार्टफोन निकाला, यूट्यूब पे गया
एक वीडियो डाउनलोड किया इराक में, इट वॉज वेरी ग्रूसम वीडियो, और मुझे दिखाया। मुझे सबसे परेशानी ये हुई कि वो दूसरा तीसरा भी पास है कि पता नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन को वो कितना बढ़िया यूज़ कर रहा है कि ही गॉट फॉर माई व्यूइंग सम ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, एक्सप्लोसिव फिल्म्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इराक। मैं जब भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो एक चीज़ नोटिस करता हूँ, कितने लोग आते हैं अपना टिकट SMS मोबाइल से दिखाते हैं और CISF वाला उनको जाने देता है। मैं कोशिश करता हूँ ये जानूँ इसमें पढ़े लिखे कितने हैं, तो लग जाता है कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। कल मैं, जिसकी चर्चा राम सेवक जी ने की, कल मैं पूरे अपने इस डिजिटल सिक्योरिटी को समझने गया था। हमारा विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और मैं उम्मीद करूंगा राम सेवक जी कभी IT मंत्रियों को वहाँ ले जाइए आप। They need to be taken as to what kind of steps government of India is taking to ensure digital security in India, cyber security in India. And I would appeal to all the secretaries also of the state governments in the IT department to visit that, to replicate some of that in their own states. तो वहाँ मुझे दिखाया गया कि ये जो रेलवे की बुकिंग होती है तत्काल से लेके सब, उसका कितना बड़ा परसेंटेज अब डिजिटाइज्ड हो गया है। और चाहे वो मुफस्सिल का व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, ये सभी अपने मोबाइल से रेलवे टिकटिंग कर रहे हैं, टिकटिंग कर रहे हैं। अभी जिसकी चर्चा की गई, जो माई गव हमने बनाया था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, हमारे विभाग ने बनाया था, तो इसमें हमने देश के लोगों से आग्रह किया था कि आप इससे जुड़िए। उसमें हमने कुछ टास्क दिए थे, गंगा, क्लीन गंगा, बिटिया बचाओ, health issues of cleanliness of the country। एक महीने में रजिस्टर्ड यूजर 2,15,299 हुए हैं इन 1 मंथ। हमने उनको 50 टास्क दिया, उस टास्क पर 28,071 लोगों ने अपनी डिटेल प्रोग्राम दिया है कि आप इसको ऐसे करिए, और लोगों ने अपने फिल्म और मीडिया इश्यूज 4,26,340 पोस्ट किए हैं। और हमने उनसे आग्रह किया कि हम कैसा बनाएं देश को 15 अगस्त के लिए, क्या शुभकामना दें। तो जो उन्होंने पूरे अपने प्रोग्राम भेजे, उसी में से हमने सेलेक्ट किया, और प्राइम मिनिस्टर ने 35 लाख लोगों को ईमेल से ग्रीट किया 15 अगस्त के दिन, और लगभग 1.25 करोड़ लोगों को मैसेज किया। तो एक नई दुनिया है, ये दुनिया अपने आप बदल रही है। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं प्रमोद महाजन की एक बात कहना चाहूँगा। वो देश के पहले IT मिनिस्टर थे। 95 में BJP का एक बहुत बड़ा नेशनल काउंसिल मीट था मुंबई में, जिसमें 1 लाख देश भर के कार्यकर्ता आए थे। तो मोबाइल के शुरुआती दिनों थे, इतनी बड़ी मोबाइल होती थी, तो उन्होंने 11-12 प्रमुख लोगों को मोबाइल दिया था टू इंश्योर बेटर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो इट बिकेम ए बिग इशू, BJP इज गोइंग हाई टेक। अखबारों में भी खबरें छपी, बड़ी बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में। मुझे याद है प्रमोद जी से मैंने एक बात पूछा तो उन्होंने मुझसे बात कही कि रवि, आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल सी ऑल दोज हु आर अपोजिंग मोबाइल टुडे विल बी यूजिंग 2 mobiles, and he was so right. But ladies and gentlemen, what is my first take today? India is sitting at the cusp of a big IT revolution. India is sitting at the banks of a big digital revolution. And I want of all of you to seize that opportunity. When the Prime Minister said that IT, India today plus IT, information technology is equal to IT, India tomorrow, it was not a vision statement. It is an obligation which we owe to the coming generations of India. That is the first issue I would like to highlight today. And as the Minister of Communication and IT of India, let me tell you, this program is politics neutral. The government of India and the state governments have to work together, hand in hand, shoulder to shoulder, because that is a great gift which we owe to the posterity of India, which are waiting it to happen. ये मेरी आपसे पहले अपील है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में कोई राजनीति नहीं है, और मुझे इस बात का बहुत संतोष है
कि 10 राज्यों के मंत्री आए हैं, सारे प्रदेशों के पदाधिकारी आए हैं, तो हम सबों को मिलकर काम करना है। ये मैं आपसे पहली गुजारिश करूंगा। अभी जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात बताई गई, मैं इसके बारे में थोड़ा सा, राकेश जी ने बताया है, ये हम क्या है। हम 50 से 60 हजार ग्राम पंचायत इस साल पहुंचना चाहते हैं। 1 लाख ग्राम पंचायत अगले साल पहुंचना चाहते हैं, और 1 लाख ग्राम पंचायत उसके अगले साल, यानी 2.5 लाख पंचायत जो देश में है, हम आने वाले 2.5 से 3 साल में पूरा करना चाहते हैं। Now, when this broadband will reach every gram panchayat, what will happen? You have created the enabling atmosphere. मुझे खुशी होगी, राइट ऑफ वे वगैरह की बात तो की गई, वो आप मंत्री और पदाधिकारी देखेंगे। इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम। लेट मी टेल, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम। एक बार जब ब्रॉडबैंड वहां पहुंच जाएगा, तो यहां मैं वाजपेयी जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था, और बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल्स को परमिट करना, ये जो टाटा स्काई प्लेटफॉर्म है, पैरेलल प्लेटफॉर्म, जो बाकी डीटीएच आए हैं, इसको मैंने पूरा प्रमोट किया था। ये जो पूरा देश में एफएम रेडियो का लिबरलाइजेशन हुआ है, आज देश में 274 एफएम चैनल्स हैं, इसकी शुरुआत भी लाइसेंस राज से रेवेन्यू शेयरिंग मैंने ही शुरुआत की थी। एक बार अगर टेलीविजन कनेक्टिविटी आ गई तो अपने आप गांव तक पहुंच गई। मैं टीवी पर, मुझे आते हुए 15 साल हो गए। अब पहली बार एमपी बना तो टीवी पर आना शुरू हो गया, सिलसिला आज तक चल रहा है। पार्टी का प्रवक्ता रहा, मुख्य प्रवक्ता रहा, मीडिया का हेड रहा। अब मुझे नहीं मालूम था कि मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी मुझे कैबिनेट का ही प्रवक्ता बना देंगे, तो मेरा मीडिया का रिश्ता चलता रहता है। बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट वंस द इनेबलिंग एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड, द रिटेलर्स जॉइंड इन and television reached nearly every village of India. बिजली है या नहीं है अलग विषय है। मैं यूपी में जाता हूँ यात्राओं में, तो हिंदुस्तान के लोग पॉलिटिकली बहुत सैवी हैं, तो बैटरी से भी टीवी के डिबेट को देखते रहते हैं। आज डिजिटल कनेक्टिविटी में भी वही समय आ गया है, और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, इसमें सहयोग करिए। ये बहुत बड़ी बात कही गई कि गांव में पंचायत भवन में उसको लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, इसमें राज्यों के विशेष सहयोग की अपेक्षा है। बिहार में मैं बताऊंगा शाहिद जी कि पंचायत भवन बहुत कम है, तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, उसकी सुरक्षा की बात की जाए। मैंने एक और बात कही है, पहाड़ों में क्या हो सकता है। कश्मीर के जो हमारे मंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं, if you have to reach all the panchayats, what kind of sanctity and security has to be given once the whole connection reaches there is a question to be considered by the state government in consultation with us, and we are willing to render all the cooperation. मैं इसके फायदे की चर्चा की गई, e-education, e-health. One of the most exciting things which I anticipate and hope once we are able to give broadband connectivity is the explosion of e-commerce in India. India is waiting to explode with e-commerce. My first understanding of e-commerce was in very curious circumstances. I keep on going abroad, and one of my nieces stays in New York, my elder sister daughter, and she knows that I at times take shoes. So she used to have a good portal of a good shoe company कि मामा आप देखिए आपको कौन सा जूता चाहिए। हमने कहा ये क्या है, एंड देयर आफ्टर माई टाइम यूज टू बी सेव्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ब्रॉडबैंड ले आए तो आई सी वेयर हाउसेस कमिंग, आई सी ई कॉमर्स बिकमिंग ए बिग थिंग, बिकॉज इवन पीपल लिविंग इन द विलेज वांट एस्पिरेशन। उनको भी आशाएं हैं, उनकी भी अपेक्षाएं हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हमको वो रास्ता दिखाएं। I see a lot of employment being generated by warehouses, by e-commerce. अभी मैं पूछता हूँ, सुशील मोदी और हम लोग किताब पढ़ने में नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं, हमारे मित्र हैं FCR के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कह रवि जी आजकल मैं सारी किताबें फ्लिपकार्ट से मंगाता हूँ, नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाती है।